with atomic properties. So what are the important atomic properties? And that is, the first one is all about atomic and ionic radius. Basically, we also talk about with respect to size, atomic size and ionic size. So, to begin with, when you talk about a group, in a group, as we go from top to bottom, the atomic and the ionic radius increases. Why? Because there is an increase in the number of quantum shells. अगर आपको याद होगा, आप लोग ने सब क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ शेल्स. तो ऊपर से नीचे जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि इन अ टैबुलर फॉर्मेट कि अगर एक ही पर्टिकुलर ग्रुप कंसीडर किया जाए तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स रिमेन्स द सेम बट द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1. सो दैट इंक्रीजेस, सो ऑब्वियसली द साइज विल आल्सो इंक्रीज. Okay, so that is the way we need to consider as far as the group part is being concerned. Now, when we talk about, say, halogens, or first of all, let me talk about group 16 itself. So as we go from oxygen to polonium, the size will increase. Now, in group 17, as we go from fluorine to acetine, the size will increase. But in case of group 17, which are also called as halogens, मैंने ये बताया था आप लोगों को, ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं. तो इन केस ऑफ ग्रुप 17 हैलोजेंस वी विल से दैट अक्रॉस द पीरियड मतलब as we go from left to right, what exactly happens is कि there is an increase in the number of electron in the, I write down this in caps, in the same shell. Okay, and therefore the force of attraction between the nucleus and the electron increases, and therefore the atomic and the ionic radii decreases. Understood this? So top to bottom it increases and left to right it decreases. So when you talk about halogens, in a period, for a particular period, if you consider, its size is the smallest. Okay, what we'll say? Its size is what? Smallest. Now, some of them will say कि सर आप बोलते हो कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होगा, तो 17 के बाद 18 भी तो है, तो 18 का साइज बढ़ना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बिकॉज इन ग्रुप 18 what happens is it has got a completely filled orbitals, NH2 and NP6. So as a result of which, there are going to be inter-electronic repulsions. और जब repulsions होता है तो you know very well, okay, फासले दूर हो जाते हैं, okay, फासले बढ़ जाते हैं और इसके वजह से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा. So therefore, the size will increase of group 18. Okay, and that's why we say group 17 is the smallest. Okay, so ये बात आप याद रखिएगा. And जब हम helium 2 रेडॉन की बात करेंगे, मतलब the same group itself, मैंने ये कभी बताया था जब मैंने 18 को कंपेयर किया 17 के साथ, लेकिन within 18 group elements का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो what will happen is, as usual, the size is going to increase. आई बात समझ में? Okay, so this is all about the very first property, and that is we talk about atomic as well as ionic radius. Okay, and I'm very sure for 16, 17 and 18 it's very clear to you all. And after we consider the atomic and the ionic radii, we go into the next important property. Okay, that is we are talking about nothing but ionization potential, or we also call it as ionization enthalpy. Now when we talk about ionization enthalpy, my dear friends, it is the energy which is being required to remove the electron. Okay, so energy required for what purpose?
to remove the electron. And which electron also? Loosely bonded electron. And that also from a isolated gaseous atom, or it can be an ion. ओके दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब भी एनर्जी देना होता है किसी भी प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस काफी इफेक्टिव तभी होता है जब एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस. इस बात को भूलना मत. ओके, सो व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, इट हैज टू बी एज लेस एज पॉसिबल. तो जल्दी होगा. जैसे आपको भी देखा, अगर आपको कोई भी काम करना है और आपको कम एनर्जी चाहिए तो आप जल्दी कर लोगे. अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर आप जल्दी नहीं कर पाओगे. सो दैट इज सेम थिंग इज गोइंग टू बी ओवर हियर एज वेल. तो इसी वजह से हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने वाले? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. ओके, बॉन्डिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का. जब बॉन्डिंग की बात होती है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होना चाहिए, तो उसका बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी वीक. और साथ में वो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से निकाले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक एटम किसी और के साथ जुड़ा हुआ है बॉन्ड के द्वारा, तो पहले तो वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो उधर एनर्जी लगेगा, फिर और एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा. इसलिए किफ़ायती एनर्जी के लिए इट शुड बी फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस, बिकॉज गैसेस में आप जानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. ऑलराइट, सो एनर्जी रिक्वायर्ड इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी लेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट. ऑलराइट, अभी जहाँ तक आयनाइजेशन एंथैल्पी का सवाल है, जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, दैट मींस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने बता दिया था पहले ही, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ते जाएगा वैसे वैसे द इलेक्ट्रॉन विल गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, तो बॉन्डिंग कम होते जाएगा, और बॉन्डिंग कम होते जाएगा तो ऐसे वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा. यानी हम ऐसा बोलेंगे, द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज. यानी इन अ ग्रुप हम ऐसा बोलेंगे कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ओके इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, अगर रेडियस बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता है. ओके, ये हो गया ग्रुप की बात. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन अ पीरियड, दैट मींस वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड इनटू द सेम शेल. ऑलराइट, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है उसका चार्ज क्या है? नेगेटिव. तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इससे साइज कम हो जाता है. सो एटॉमिक रेडियस ओके डिक्रीजेस. ओके, तो बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ गया न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए क्या ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. ओके, तो रिलेशनशिप इज द सेम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. लेकिन टॉप टू बॉटम इफ यू गो, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. ओके, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, दैट इज हम बात करेंगे ग्रुप 15 के बारे में. ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP3 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको. और जो ग्रुप 16 की बात हो रही है उसमें NH2 और NP4 है. अब यहाँ पर आप देखो, s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड p ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स का होता है. ये 3 है, मतलब इट इज हाफ फिल्ड है, एंड हाफ फिल्ड स्टेट इज मोर स्टेबल. और एक स्टेबल स्टेट में से अगर इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है तो जाहिर सी बात है एनर्जी मुझे ज्यादा देना पड़ेगा. एंड देयरफॉर वी से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन ग्रुप 16. ओके, ऐसे तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चाहिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, यानी 16 का आयनाइजेशन एंथैल्पी 15 से ज्यादा होना चाहिए था. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज मोर स्टेबल गिवन टू द हाफ फिल्ड स्टेट ऑफ 15, और इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 16. Okay, so आई बात समझ में ये. So this was all about ionization enthalpy which we talk about. जहाँ तक ग्रुप 18 का सवाल है, obviously ionization enthalpy is going to be very very high, क्योंकि it has no tendency at all either to donate the electron or accept the electron. So group 18 का ionization enthalpy is very very high. Okay, so this is all about ionization enthalpy and I'm sure आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, एंड दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, नाम से ही आपको पता चलेगा, इलेक्ट्रो मतलब इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स,
और इलेक्ट्रॉन के वजह से नेगेटिव चार्ज एक एलिमेंट के ऊपर तभी आ सकता है जब वो एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। सो सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इट इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। Okay, what is it? Its tendency is to gain electron. Okay, that is what is electronegativity is. तो अब जब हम ग्रुप की बात करें, and that means we talk about from top to bottom. अभी इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो न्यूक्लियस का पावर ज्यादा होना चाहिए, बराबर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। तो अगर न्यूक्लियस का पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का गेनिंग पावर इज ऑल्सो आई मीन ऑफ द एलिमेंट इज गोइंग टू बी मोर। अब न्यूक्लियस का पावर कभी ज्यादा होगा जब साइज कम होगा। ओके, सो साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज टू बी व्हाट मोर। ऑलराइट, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज और द एटॉमिक रेडिया विल इंक्रीज। अगर एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हुआ तो कॉमन सेंस है व्हाट विल हैपन इज द न्यूक्लियस का पावर बिकम्स लेस, पॉजिटिविटी बिकम्स लेस, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने का टेंडेंसी है दैट बिकम्स लेस। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ओके, यानी वंस अगेन वी से एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इन अ पर्टिकुलर ग्रुप जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ओके उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट। Am I clear with this? So this is what we need to consider. Now what happens is in group number 16 with therefore we say electronegativity highest किसका होगा, ऑक्सीजन का। ग्रुप नंबर 17 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट विल बी ऑफ फ्लोरीन। ओके, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है दोस्तों वी डोंट टॉक अबाउट ग्रुप 18 बिकॉज दे आर इनर्ट गैसेस, so they do not have a tendency to gain electrons and all. So we are going to talk only about two groups, that is 16 as well as 17. ओके, तो अमॉन्ग्स्ट 16 ऑक्सीजन का ज्यादा है, अमॉन्ग्स्ट 17 फ्लोरीन का ज्यादा है। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ कि फ्लोरीन, मैं आई राइट इट डाउन इन कैप सो यू अंडरस्टैंड दिस, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। ये आप भूलना मत। On a Pauling scale, the value of fluorine is 4 और ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड हाईएस्ट है, second most electronegative element. On the Pauling scale its value is 3.5, fluorine का value is 4. Okay, so oxygen is the second most electronegative element in the periodic table. Of course समझ में आ गया होगा, first कौन है, of course it is going to be what, fluorine. Okay, it's the most electronegative element in the periodic table. So this is what you need to remember about electronegativity. Okay, also you understand one thing is okay, when you go from 16 to 17 the electronegativity will increase. Alright, because what happens is the size is going to decrease. Okay, so when we go across the period, that is from left to right, the atomic radius will decrease and therefore the electronegativity will increase. Okay, and therefore we say electronegativity of oxygen is less than that of fluorine, क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 16 और फ्लोरीन का ग्रुप नंबर है 17. Alright, और इस वजह से we say fluorine is more electronegative as compared to oxygen. Understood this part? So this is all about electronegativity. कंसेप्ट सब समझ में आ रहा है ना, बराबर? यस। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाने के बाद उसी से मिलता जुलता, देखिए दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं वर्ड मिलता जुलता, ऑलमोस्ट सिमिलर, इट्स नॉट एक्जैक्टली सेम। ओके, देयर आर सम चेंजेस। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Okay, what it is called as electron gain enthalpy. Now what is electron gain enthalpy is, in simple words, it is the energy which is released when the electron is accepted. Okay, because energy और electron का directions are opposite, हमेशा याद रखिएगा. Okay, so जब भी electron accept होता है तो energy is what? Released. Alright, so this energy released is basically called as electron gain enthalpy. लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, tendency to attract the electron and tendency to accept the electron and then the energy release is different.
ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो बात कर रहे थे हम लोग वो फर्स्ट पार्ट था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज करने का है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन attracting a particular species and accepting a particular species. Okay, that is what the difference is between electronegativity and electron gain enthalpy. अब generally हम लोग ऐसे बोलते हैं कि as we go from top to bottom, the electron gain enthalpy will decrease. Okay, ऊपर से नीचे जाएंगे तो electron gain enthalpy क्या होगा, कम हो जाएगा। Okay, लेकिन जैसे मैंने बोला है कि it is not always the same. The reason is because कि मैं अभी group 16 की मैं बात करता हूँ। In group 16, now what happens is when we talk about oxygen and sulfur, what is expected is it should decrease. So, oxygen का electron gain enthalpy should be more as compared to that of sulfur. Okay, but what will happen is oxygen has got a very small size. So, there are repulsions taking place amongst the electrons. इनके small size है दोस्तों, तो electron density is high. समझा ना आपने? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन स्पेस, छोटी सी जगह है तो इलेक्ट्रॉन सब नजदीक नजदीक रहेंगे। हाँ, बड़ी जगह होती तो इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन यहाँ पे जगह छोटी सी है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर देयर इज गोइंग टू बी रिपल्शंस। ओके, उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, सो रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं दोस्तों, प्लीज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो करेगा ही, उसका चार्ज ही हमेशा होता है O2- अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो, अगर वो पेरोक्साइड के फॉर्म में तो O-1 है, यानी इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट तो करेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो कम करेगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, और जो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी वो अट्रैक्ट जल्दी कर लेगा। ओके, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बारी आती है और एनर्जी रिलीज करने की बारी आती है तो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। ओके, एज कंपेयर टू व्हाट द सेकंड एलिमेंट दैट इज सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस। ओके, उसका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इज लेस। ओके, लेकिन क्या हो गया कि एक बार इलेक्ट्रॉन ने अप्रोच किया तो वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो एक्सपीरियंस कर रहा है द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। क्यों? बिकॉज साइज ज्यादा है और सल्फर का साइज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। तो जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इट विल बी इजीली एक्सेप्टेड। ओके, इट विल बी लेस अट्रैक्टेड, बट वंस इट इज अट्रैक्टेड इट इज इजीली एक्सेप्टेड एंड देयरफॉर मोर इजीली एक्सेप्टेड, मोर एनर्जी इज रिलीज। ओके, और इसलिए हम लोग बोलेंगे देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ sulfur is more than that of oxygen. Okay, it is because of this reason that you need to understand that. Okay, I hope this part is very clear to you. Similarly, we are going to take for group 17 as well. For group 17 also the same thing is expected one is nothing but we talk about fluorine greater than chlorine. But then because of the same reason we say electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. सेम रीजन सर, जो मैंने आपको बताया वही फॉर ऑक्सीजन और सल्फर, वैसे ही मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए भी मैंने सेम रीजन बता रहा हूँ कि फ्लोरीन का साइज कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली अट्रैक्टेड, बट एक्सेप्टेड में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा। ओके, सो दीस आर व्हाट द रीजन इज। और लास्ट में जब हम ग्रुप 18 की बात करते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ग्रुप 18 हैज गॉट अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज इट हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, लेस टेंडेंसी एंड नो टेंडेंसी में फर्क है। इसके पास नो टेंडेंसी है एंड देयरफॉर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। Normally electron gain enthalpy में क्या energy is released and therefore it is negative, it is an exothermic reaction। लेकिन यहाँ पर क्या रिएक्शन आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगा, क्योंकि उनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए जबरदस्ती करने का है। देखो कोई भी चीज को है ना, कोई भी इंसान को भी बोलो कि ये करो, ओके, तो बहुत जबरदस्ती, बहुत एनर्जी देना पड़ता है तब जाकर वो करेगा, लेकिन अपने मन से करेगा तो एनर्जी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट अबाउट ग्रुप 18 इज कंसर्न, कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is positive, all right, because it has no tendency to gain electrons. I guess you have understood this concept.